नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं है ऐसा तुम्हारा। ओके, वेलकम टू द अनदर कोर्स, another session of the course Computer Integrated Manufacturing System. That is, we are going to attend today the computer aided process planning. In this discussion, the learning objectives are we are about to understand the computer aided process planning. Then we will see how the type of CAPP is there and their merit and demerit as well. Further, we are also have some discussion upon the process planning information flow. How the information are planning information are going to flow in the each process. Then, what is the computer generated time standard? These are the learning outcome for the today's discussion. As we know, the computer aided process plan यानी कि एक ऐसा प्लान जो कंप्यूटर एडेड है, जिसमें हमने कंप्यूटर को इंटीग्रेट किया है, और वो प्रोसेस प्लान ये बताता है कि कैसे डिजाइन जो पार्ट हुआ वो और उसकी कैसे मैन्युफैक्चरिंग होनी है, वो इन दोनों के बीच में एक तरह का ये लिंक प्रोवाइड कराता है, एक तरह का ये लिंक प्रोवाइड करता है। एंड इट्स ऑल्सो गिव द रूट टू, एक पाथ देता है हर एक कंपोनेंट को जिसको मैन्युफैक्चर करना है या जिसका हमारे पास ऑर्डर है, उसको एक सीक्वेंशियली एक पाथ प्रोवाइड कराता है, और उस पाथ पे उसको कितनी देर रुकना है, उस पाथ पे कौन सी मशीन पे कितना वर्क, क्या वर्क होना है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑल्सो एज ए रूट शीट, रूट शीट। Okay, these are the few these are two pictures of the computer aided process planning. This is with the help of software, and this is the outcome. Now, in a computerized manufacturing planning system, uh, we have separately three component. First of all, computer aided process planning. Second, computer integrated production planning system. Okay, this is the part of computerized manufacturing system. First, planning would be there. Okay, then production planning would be there, and then how the material should be arrived at a right time at a right place. That is the material requirement planning. So this is the resource. This is how the things are going to be produced, and this will tell you about the how this both are going to plan. Okay, now we are going to have a first discussion upon the in this the computer aided process plan, and later upcoming discussion session we will going to attend the CIPP and MRP also. So based on the planner's knowledge, basically planner should be have a very thoroughly knowledge and learned person, so he or she may have the correct kind of the process planning, correct kind of process planning. So he or she should have best knowledge about the or manufacturing availability of any machine and tools. Then skill should be there, and well experienced person should be there. So the process step are developed in a most logical sequence, and with a minimum errors, with minimum errors. Okay, so you can give the जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग में अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसको विद इन अ टाइम आप उसको डिस्पैच कर सको, विद इन अ टाइम डिस्पैच कर सको और ऑर्डर की क्वांटिटी को पूरा कर सको. So it will reduce the your lead time as well. So interpretation, जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर होगा या प्रोसेस प्लानर होगा, he or she should have to
interpret the design drawing available, then material, the dimensions, the tolerance, and surface finish, etc. It He or she should have to understand the process sequencing, the brief description of the all the process and steps. Then equipment selection should be optimized to utilize the existing equipment. No new inventory, नो तो नहीं कह सकूंगा, लेस लेस न्यू इन्वेंट्री और न्यू प्रोक्योरमेंट. तो जो प्रोक्योरमेंट होगा वो लेस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हर ऑर्डर के लिए तुम कोई ना कोई मशीन ऑर्डर करे जा रहे हो. दैट शुड नॉट बी देयर. सो प्रोक्योरमेंट और न्यू इक्विपमेंट लाइक ए टूल्स, डाई, मोल्ड, फिक्सचर, ये सपोर्टिंग चीजें हैं, ये मशीन्स नहीं है, बट दीज आर दी सपोर्टिंग थिंग्स. ये सपोर्टिंग थिंग्स को आप ऑर्डर करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहोगे, वो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर और प्रोसेस प्लानर के हिस्सा है. देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क स्टैंडर्ड, काम करते हुए टाइम एंड मोशन स्टडी को भी, ईच ऑपरेशन को भी देखने वाला होना चाहिए. सो दीज आर बेसिकली लाइकली टू बी चेंज फ्रिक्वेंटली एंड कंटिन्यूसली. ये सब चीजें ऑर्डर पे डिपेंड होती है कि आप कौन सा पार्ट बना रहे हो. तो पार्ट के प्रोसेस पे डिपेंड होती है हर चीज. Okay, so manufacturing engineer should have this kind of quality, and he or she should have to gone through this kind of sequences, and keep in mind for interpretation of design data, process sequences, equipment selection, and work standard also. Further, हम computer aided process planning क्यों choose करते हैं? My question is why? What is the need? So that is what the systematically produce product accurate. अगर आपका प्लानिंग एक्यूरेट होगी तो ये एक्यूरेट होगा, और कंसिस्टेंट प्रोसेस प्लान होगा. ओके, जो बिना हर्डल के कंटिन्यूस सिंगल फ्लो मेंटेन करेगा, सिंगल फ्लो ऑफ द कंपोनेंट मेंटेन करेगा. उसको यहाँ से जहां से उसको वर्क कराना है, वर्क करा के सिंगल फ्लो मेंटेन करेगा फ्रॉम रॉ मटेरियल टू डिस्पैच सेक्शन. So with this we can reduce the cost of manufacturing basically, क्योंकि हम टाइम बचाते हैं. फ्लो के अंदर हम कहते हैं ना कि when and how much, तो when का मतलब हो गया टाइम, और how much का हो गया मतलब क्वांटिटी. तो इन दोनों का प्रोसेस फ्लो मेंटेन रहेगा. सो वी शुड हैव अ reduce cost, manufacturing cost, and lead time also, so we can deliver the order at a stipulated time. Then reduce the non productive residence time. कहीं पे वेटिंग करना पड़ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी मशीन पे, कि पहले से कोई काम चल रहा है और हमारा प्रोडक्ट दूसरा वाला भी पहुंच गया, तो उसको वेट करना पड़ सकता है. सो अगर आपका प्रोसेस प्लान अकॉर्डिंगली है और वेल डिजाइन है, तो ये कम से कम होगा. सो इट विल अफेक्ट, दे आर ऑल आर इंटरलिंक्ड. इट विल अफेक्ट द लीड टाइम ऑल्सो, एंड इट विल अफेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑल्सो. And further, it will increase the productivity by utilizing the idle machine tool. यानी ऐसा कई बार होता है कि एक मशीन तो 24/7 बिजी है, और एक मशीन 24 में से 6 डे या 5 डे ही बिजी है. So whatever idle time is available, that is a 2 or 1 day, should be planned accordingly. That idling time of any machine should be minimized. Then शॉर्टर मटेरियल फ्लो रूट, जहां से कम शॉर्ट फ्लो हो, लॉन्ग रूट नहीं होना चाहिए. सो वी विल हैव अ रिड्यूस टाइम हियर आल्सो. सो इंटरफेसिंग बिटवीन द कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम एंड वर्क स्टैंडर्ड, दिस इज द मेन क्लॉज के इनके थ्रू आप, इन तीनों के थ्रू, कौन कि कॉस्ट, इंटरफेसिंग मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, कॉस्ट के बीच में, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम के बीच में, और वॉट एवर काइंड ऑफ वर्क स्टैंडर्ड आप जो यूज कर रहे हो, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, इस तरीके से. ये बताऊंगा मैं धीरे धीरे आपको. मोशन स्टडी, इनको लेके कि एक आइटम को अगर एक्स मेथड से करो तो व्हाट विल बी द टाइम, एंड वाई मेथड से करो तो व्हाट विल बी द टाइम, एंड इफ ए इज द लेस देन द बी, देन प्रीफर द एक्स. ओके, और इफ इस ए के अंदर भी आपने सेग्रीगेशन किए, कि सेग्रीगेशन आपने 1 2 3 किए, और 1 2 3 में
और बी के भी सेग्रीगेशन किए या वाई मेथड के भी सेग्रीगेशन किए 1 2 3, बट यू विल फाइंड दैट द time consuming in the 1 and 2 activity in the B are larger than time consumed in the 1 and 2 activity of X method. But in a time third method, the time consumed in the third method is less than the time consumed in the first method. Okay. So in such a case, you are going to replace this one with this. So this is what we can generate the new method that have a combination of A plus B एंड हैविंग, अगर इसको हम ए कहते हैं तो इसको हम बी कह देंगे अब, क्योंकि बी का टाइम इससे कम था, तो ये मेथड इसको यूज में ले लेंगे. सो यू विल हैव न्यू मेथड दैट हैव 1 A 2 A and 3 B process. So this overall this Z process have a minimum time than the X process and Y process. Okay. So these time functions and motion study will be carried out with a uh, predefined approaches. ये भी स्टडी करनी चाहिए. So इन सबको लेते हुए we are going to have interfacing between the cost, manufacturing lead time and work standard. ये सारे काम कौन करता है? CAPP. ये इसका इनहेरेंट एडवांटेज है. So it means that you are going to use efficiently man, machine, material, and material maybe in terms of money. So basically it will address the effectively use of 3M: man, machine, and material or money. Okay. Now translation of design information into the process step and instruction to efficient and effective manufacturing. This is the CAPP. What is CAPP? Is the translation of design information into the various process steps and instruction to efficient and effective manufacturing. Efficient with a high production या productivity. Okay. With effective means you are going to have highly utilized the man, machine, money, material. Okay. And of course at the time of lower cost of manufacturing. Okay. It helps in simplifying and efficiently carried out the conventional process plan and optimizing the use of the whatever available resources. जितने भी अवेलेबल आपके पास में रिसोर्स है, मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, उनका ऑप्टिमाइज यूज करके कन्वेंशनल प्लान को इफेक्टिवली एंड सिंप्लीफाई करके हेल्प करता है हमारी. Detailed set of instructions, engineering drawings is the part of your computer-aided process planning. Specification, parts, material list, tool list. और tool list में आपके all the tools would be there, all the jigs would be there. Okay, jigs would be there, fixture would be there. So all things should be already written into CAPP of any A part और मशीन. कोई भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तब भी तो मशीन का ये पार्ट कहाँ बनेगा, इसका क्या फ्लो होगा, उस तरीके से. सो ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी. सो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग से ये अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे पास एक्स मशीन का ऑर्डर है. फॉर एग्जांपल कोई ग्राइंडिंग मशीन मुझे बनानी है, उस मशीन का ऑर्डर है. सो कब मेरा उस मशीन का ये वाला कंपोनेंट फैब्रिकेट हो जाएगा, when this component would going to fabricate, when the B component would be going to ready for the assembly, when the C component going to be D component ready to be assembled, and then when the machine is going to be ready.
So you can have an idea about the dispatch date. Dispatch date. So it means that you are going to have order date, order fulfillment date, supply date. Okay. So कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग में पहले से ही पता है कि यहाँ पे इस प्रोसेस में इतना टाइम लगने वाला है until unless your material and tools are ready. Okay, so this should be addressed into the computer aided process plan, that the material should be ordered at this date and to be reached in the factory by this date, और सो में एनी स्पेसिफिक डेट। तो सारी चीजें इसमें पहले से ही हमें प्लान कर रखी होती है। सो प्रोसेस इज कंप्लीटली प्लान, तो इसके हिसाब से हम अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। So this is the typical framework of computer aided process plan. Typical framework. हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरा प्रोसेस प्लान का सिचुएशन है वेयर वी आर आई एम गोइंग टू हैव मीन दिस इज माय सेंटर पॉइंट फॉर एग्जाम्पल। ओके, यहां से सीएनसी प्रोग्राम भी निकलेगा, कुछ कनेक्टेड डेटा भी यहां से निकलेंगे। ठीक है, बट इसको इनपुट कौन देगा? लुक एट द इनपुट साइड फर्स्ट। इनपुट साइड इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कोई प्लानिंग सिस्टम है, कि एक प्लानिंग जोन है, वहां से प्रोडक्ट की डिजाइन यानी प्रोडक्शन की डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिक्वेस्ट आती है और उसको हम कैड में मॉडल करते हैं। कैड में मॉडल करने के बाद ज्योमेट्रिकल जो डेटा है कि क्या हाइट है, क्या बॉडी है, क्या मटेरियल है, वो सारे क्या शेप है, वो डेटा हम प्रोसेस प्लान में फीड इनपुट करेंगे। फर्दर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में कि कैपेसिटी प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे कि पार्ट की मास्टर डेटा क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास में ऑलरेडी इन द लाइब्रेरी। ये बेसिकली इसके साथ में सामंजस्य बैठाएगा इन दोनों के साथ में। देन अगर मटेरियल की कुछ रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इट विल प्रोवाइड यू ए प्रोसेस डेटा कि दिस आर दी शॉर्टफॉल। उस शॉर्टफॉल के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑर्डर दिया जाएगा। वो कैम के अंदर प्रोसेस होने की कोशिश करेंगे और यहां पर इस फ्लोर पे प्रोडक्शन जो कंट्रोल होगा वो कैरिड आउट होगा विद द हेल्प ऑफ एनसी प्रोग्राम और एनी अदर रिलेवेंट डेटा, क्वालिटी डेटा, एनी अदर रिलेवेंट। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग में मशीन भी आएगी, टूल्स भी आएंगे, फिक्चर्स भी होंगे या कोई डेटा बैंक भी होगा। दीज आर द पार्ट ऑफ द मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। दीज आर द पार्ट। सो हाउ दिस ऑल द पार्ट्स आर, यहां से आपकी पार्ट की लिस्ट कनेक्ट होगी, इससे मटेरियल ऑर्डर करने की कोशिश करेगा, एक्चुअल डेटा प्रोवाइड कराएगा। ओके, कैम के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और सीएपीपी यहाँ से एनसी पार्ट, और ये शॉप फ्लोर के अंदर यहाँ पे शॉप फ्लोर पे ये एक्चुअल प्रोसेस परफॉर्म होगा। Isn't it? तो इस तरीके से पूरा कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान इज गोइंग टू वर्क। नाउ टाइप एंड अप्रोचेस की बात करें कि यहाँ पे हमारे टाइप और अप्रोचेस कौन कौन से हैं, तो एक वेरिएंट टाइप और रिट्रीवल टाइप। फर्दर सेकंड वन इज द जनरेटिव टाइप एंड थर्ड वन इज द हाइब्रिड ऑफ द दिस टू। These two will generate the third one. So you can convert old to new CAPP while changing these things as per requirement. Any design changes in the cost estimates should be there. जैसे old अगर आपका कोई 4 साल पुराना है, 4 year back, so you should have to incorporate the things. You should have to change the cost. अगर इसके अंदर कोई ओल्ड डिजाइन यूज हुई थी उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। फर्दर इस वक्त जब ओल्ड डिजाइन किया था तब कोई मशीन ब्रेकडाउन था, उसकी करंट सिचुएशन क्या है, कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है या कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, तो उसको भी हम इनकॉर्पोरेट करें। The first one is the variant or retrieval CAPP. इसके अंदर बेसिकली जो नया पार्ट के लिए जो आपको करना है प्रोसेस प्लान is generated basically recalling or identify the and retrieving of an existing plan for a set of item.
सिमिलर काइंड ऑफ आइटम, ओके, जो एट्रीब्यूट वाइज सिमिलर हो, एट्रीब्यूट वाइज सिमिलर हो, ठीक है, जिसके लगभग प्रोसेसेस सेम हो, ओके, प्रोसेसेस सेम हो, उस तरह के पार्ट की हम पहले से जो हमारा लिखा हुआ है उसको हम ओल्ड प्लान कहते हैं, ओल्ड सीएपीपी, उसको हम उठाएंगे और उसमें नेसेसरी मॉडिफिकेशन करने के बाद वी आर गोइंग टू सजेस्ट दैट दिस इज माय न्यू प्रोसेस प्लान फॉर अ एक्स पार्ट, कोई भी नया एक्स पार्ट है उसके लिए। तो हम ओल्ड प्रोसेस प्लान को नया करेंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रैक टेबल, ओके। कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ ए ग्रुप टेक्नोलॉजी, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, जब भी हमारा होगा ग्रुप टेक्नोलॉजी, उसको यूज करेंगे। ग्रुप टेक्नोलॉजी बेसिकली ग्रुपिंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, सो द इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी अवेलेबल इनटू द ग्रुप टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम के ये पार्ट सिमिलर है, x1 x2 x3 x4 ये पार्ट सिमिलर है, और जो x4 आप नया जो पार्ट x पार्ट जो नया करने जा रहे हो वो इसी कैटेगरी का है, इसी फैमिली का है। सो यू आर गोइंग टू take the old CAPP plan and you are going to make the necessary changes and then creating a new revised, या कहते हो revised process plan, ठीक है। Number of algorithm, mathematical model are developed for a family part information and plan retrieval, ये भी एक ग्रुप टेक्नोलॉजी का पार्ट है कि ऑलरेडी आपने कुछ ऐसे एल्गोरिथम लिख रखे हैं कि उस एल्गोरिथम में आप कहते हो कि आपका पार्ट सिमिलर है, तो सिमिलर पार्ट में से कुछ उसके एट्रीब्यूट नंबर 1 जैसे आपने प्रोसेस में दिया कि मेरे ये यानी कि ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग ये अवेलेबल है इस पार्ट में। इस सेकंड आपने एट्रीब्यूट दिया इसकी डायमेंशन डी ये है, विड्थ ये है, लेंथ ये है, ओके। थर्ड आपने एट्रीब्यूट दिया कि इसका मटेरियल एल्यूमिनियम है, ओके। सो इस तरीके की चीजों को जो मैच खाता हुआ पार्ट होगा वो पार्ट आपको सिस्टम उठा के दे देगा कि दिस मैचिंग पार्ट आर x1 x2 एंड x3, और इसमें से सिमिलरिटी बहुत ज्यादा करनी है तो इसको फोर्थ पे ले जाइए, सो इट विल गोइंग टू रिड्यूस बाय x1 और x2, और फिल्टर करना है तो और फिल्टर करिए, पांचवें नंबर की एट्रीब्यूट दे दीजिए, सो इट विल गोइंग टू अगेन द फिल्टर, और मे बी फिफ्थ एट्रीब्यूट वुड बी नॉट गोइंग टू apply, so in such case you have to choose the old CAPP from for the part x1 और x2। तो इस तरीके से ओल्ड प्लान को चूज करके आप नया प्लान बना सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? as you may notice that the processing and evaluation of complicated activity and managerial issue done in the efficient manner already है, thus reduction in the time and labor requirement. Reduction in development and hardware cost and shorter development time is also a bigger advantage. Disadvantage: difficult to maintain the contingency during the editing. Proper accommodation of various combination of attributes such as material, geometry, size, precision, quality, alternative processing sequences, loading among many other factors are difficult to identify and process. The quality of the final process plan largely depend on the knowledge and experience of the production process planner. ये सबसे बड़ा इश्यू है। And second approach is the generative type. Generative type process plan generate by a means of decision logics, formulas, technology, algorithms. Main aim to convert a part from a raw material to a finished state. Okay? क्या कहता है ये? Process plan generated by means of decision logic, formulas, technology, algorithm available. The aim was you need to convert the raw material into the finished state. Input to the system include the description of the part in the form of part code number. Okay, we will look at upon the part code number also in the while we are going to discuss the family
family part coding in the group technology. So the generative kind of CAPP consists of two major components. One is the geometry based, another is the knowledge based coding system. In geometry based coding system, all geometrical features for all processes such as किसी की surface, feature dimensions are defined by a geometric based coding system. The level of detail is much greater in generative system than variant system. वेरिएंट में हमने देखा कि हम ओल्डर प्लान को मॉडिफाई कर रहे हैं. दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ डिटेल इज मच ग्रेटर इन द जनरेटिव. While in case of knowledge based coding system, the process knowledge in the form of decision logic, data are used to matching the part geometry requirement with the manufacturing capability. तो इसके अंदर बेसिकली ये इसका पार्ट है, डेटा के बेस पे और डिसीजन लॉजिक के बेस पे कोई पार्ट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट हम आइडेंटिफाई करेंगे टू गेट दी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द जनरेटिव काइंड के एडवांटेजेस देख लेते हैं. दे आर रियली लेस रिलाई ऑन द ग्रुप टेक्नोलॉजी कोड नंबर. जो आपने कोड नंबर ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है उसके थ्रू, उस कोड नंबर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर होती है. जैसे आपने सुना होगा बार कोड है, देखते हो बार कोड जनरली इस तरीके से बार कोड्स होते हैं. बार कोड में भी कई इंफॉर्मेशन होती है. वो इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कि प्रोडक्ट, कई सारी इंफॉर्मेशन है, लोकेशन प्रोडक्ट की, इसकी किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, उस तरह की डिटेल. तो ऐसी एक कोडिंग हम ग्रुप टेक्नोलॉजी में डेवलप करते हैं. Okay, that is the basic input for the to generate the generative kind of CAPP. So usually use a decision tree to categorize the part into family. Maintenance and updating of store process plan are largely unnecessary. Okay, these are the advantages. New component can be planned as easy as existing component. ये इसका बहुत ज्यादा फायदा है. Now another discussion session is the for how the information are going to be flow into the process planning. The process plan is here, the manufacturing engineering is here. If manufacturing engineering have a two category, one is the process plan and one is the tool design. प्रोसेस प्लान के लिए आपको इंजीनियरिंग डिजाइन की जरूरत पड़ती है पहले कि कोई न्यू प्रोडक्ट की डिजाइन है या इंजीनियरिंग चेंजेस है, ओनली बिल्कुल ही फ्रेश डिजाइन अपीयर हुई है या इंजीनियरिंग चेंजेस है ओनली. इंजीनियरिंग चेंजेस किसी भी तरह से हो सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री शेप्स भी हो सकती है, क्वालिटी भी हो सकती है, और क्वालिटी इन द सेंस ऑफ टॉलरेंस है या किसी छोटे मोटे चेंजेस है, होल्स की साइज इंक्रीज कर दी, नंबर ऑफ होल्स चेंजेस कर दिए, वो सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ देंगे. फिर अगर कोई नया मेथड लॉन्च हुआ है, न्यू प्रोसेस हुआ है, न्यू इक्विपमेंट हमने प्रोक्योर किया है, या कोई न्यू लेआउट ऑफ द शॉप फ्लोर है, या कोई नया मैन्युफैक्चरिंग सेल हमने डेवलप किया है, उन सब की इंफॉर्मेशन हम इसको देंगे. फिर हम मैन्युफैक्चरिंग डेटा की इंफॉर्मेशन देखेंगे, हमारे पास में कौन कौन सी मशीन अवेलेबल है, उसके क्या डेटा है, यानी कि मशीन की बेसिकली स्पेसिफिकेशन कि किस बड़े से बड़ा कितना जॉब ये LWH हैंडल कर. प्रोसीजर जो अवेलेबल है एज पर दी स्टैंडर्ड्स, एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशंस, टूल्स की, लेआउट्स की, कि मशीन किस लेआउट में सेट है, पहले ड्रिल है, उसके बाद में मिल है, उसके बाद में ग्राइंडर है, इस तरह के लेआउट, या किस सेक्शन में कितनी मशीनें कैसे लोकेट है. So flow could be like this or flow could be like this कि यहां से यहां फ्लो हो सके. इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स के लिए कौन से अवेलेबिलिटी है, मटेरियल टाइप्स कौन से हमारे हम यूज करते हैं जो हमारी मशीन अकोमोडेट कर सकते. प्रोड्यूसिबिलिटी लिमिटेशंस क्या है, हमारी अपर बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इससे ज्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते या इससे बड़ी डायमेंशन का हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते. लिमिटेशन क्या है,
क्या हमारे पास क्रेन्स ऐसी है जो 5 टन से ज्यादा का सामान नहीं उठा पाएगी, या हमारे पास में फोकलिफ्ट है ही नहीं। इस तरह की लिमिटेशंस वी शुड हैव टू आल्सो प्रोवाइड टू अ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड स्टैंडर्ड टाइम डेटा, कि अगर आपको मटेरियल रिमूव रेट एल्यूमिनियम में 2 mm की मटेरियल रिमूव करनी है, सो इट विल टेक अराउंड दिस मच अमाउंट ऑफ द टाइम, एक्स टाइम सेकेंड। इस तरीके के हैं कुछ टाइम स्टैंडर्ड डेटा अवेलेबल है। वो असेंबली में इतनी छोटी असेंबली है तो उसके कितना टाइम लगता है, इस तरह की सारे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। दैट इज बेसिकली इनपुट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सिस्टम टू गेट द प्रोसेस प्लान। द आउटपुट ऑफ द दिस इज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, किस वर्क सेंटर पे जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम्स क्या रहेगा, कौन से टूल्स और फिक्सरिंग या जिग्स चाहिएंगे, मटेरियल कौन सा चाहिएगा, ड्राइंग भी देगा ये, because the CAD is the part of this as we seen in the previous slides। एंड मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, एनसी प्रोग्राम किसके लिए कौन सी रहेगी वो आप देंगे, इंस्पेक्शन इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि किस प्रोडक्ट पे किस पार्ट पे आपका इस टॉलरेंस को आपको देखना है, और कहाँ पे हॉर्निंग होनी है, कहाँ पे मटेरियल फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, डेटम क्या होना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए स्टोर रखेंगे, और क्या मेथड आप अप्लाई करेंगे। देन ऑल्सो अकाउंटिंग के वर्क सेंटर कितना बिजी रहेगा, क्या उसके स्टैंडर्ड्स रहेंगे, उस पर क्या मटेरियल जाएंगे, कहाँ कहाँ। आपको परचेजिंग क्या करनी है, कौन सा मटेरियल करना है, टाइप एस्टिमेट्स के लिए आपको क्या देखना है, और ड्राइंग आप कहाँ से प्रिंट करवाओगे, या ड्राइंग किससे आपको ड्रॉ करवानी है, या किससे आपको पैटर्न बनवाना है। प्रोडक्शन कंट्रोल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या रहेंगे, पहले किस शॉप पे जाएगी, उसके बाद में मटेरियल किस शॉप पे जाएगा, उसके बाद में यहाँ से डाइवर्ट होगा कि कुछ पार्ट इस पे बनेगा, फिर इसके बाद में यहाँ पे जाएगा, और इसके बाद में अगेन वापस जरूरत पड़ी तो यहाँ पे जाएगा। इस तरह के प्रोसेस सीक्वेंस या प्रोसेस फ्लो सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन होगा कि वर्क सेंटर को किस किस को यूटिलाइज करोगे। अगेन टाइम स्टैंडर्ड वुड बी देयर, ड्राइंग वुड बी देयर, एंड मटेरियल वुड बी देयर। सो परचेजिंग यानी कि इन्वेंट्री के लिए ये जाएगा कि हमारी ये ड्राइंग है, इसके लिए ये अवेलेबिलिटी है, या ये मटेरियल चाहिए, आपके पास है तो आप चेक कर लीजिए, या ये ऑलरेडी एक तरह से इसके पास में अवेलेबल कराएगा डेटा कि मटेरियल जैसे मटेरियल टाइप कौन सी है, इस तरीके से दीज आर द डेटा ऑलरेडी अवेलेबल इनटू द फैक्ट्री और एनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फैक्ट्री। ओके, किसी को कोई डाउट? सो नाउ कंप्यूटर जनरेटेड टाइम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, द लास्ट टॉपिक। इट्स अ work measurement can be defined as a development of a time standard to indicate the value of a task. Various purposes for work measurements are wage incentive। अगर आप x अमाउंट का काम y ए टाइम में कर देते हो तो आपको इतना परसेंटेज इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, estimating of the cost for a particular kind of job, टू शेड्यूल अ प्रोडक्शन एंड प्लान कैपेसिटी, कि अगर ये इस तरीके से कर लेता है तो आई कैन गेट अ डे, इन अ डे वाई अमाउंट। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 7 आई विल गेट अ वीक, एंड मल्टीप्लाई बाय 30 आई विल गेट अ आंसर फॉर अ मंथ, कि एक मंथ में मैं इतना आइटम प्रोड्यूस कर सकता हूँ। So this is basically upon the depend upon the how you are going to measure the work and generate the time standard. So it measure estimate the performance of worker also. So that is why कि उनके इंसेंटिव की चीजें बढ़ती जाती है, और उनको आप इंसेंटिवाइज और प्रमोट भी कर सकते हो कि वर्क इनका इतना अच्छा है, और उनको नॉमिनेट भी कर सकते हो। इस तरह की चीजें चलती है। So work measurement is related to production process planning, because in a well-organized process planning system, a time standard must be determined for each of the operation listed on the route sheet so as to meet out the estimated order delivery schedule. Okay, this is a well-defined line. So whatever you have placed the you have promise for the delivery date, you can map out with the help of this kind of thing. Okay, on the basis of this, one can
one can estimate the delivery time. Estimate the delivery time. Okay. So जब तक आप कोई टाइम स्टैंडर्ड नहीं करोगे कि एक्स प्रोसेस वाई प्रोसेस में कितना टाइम लगना है, सो ऑल आर गोइंग टू बी सम कि एक्स पे इतना लगना है, वाई पे इतना लगना है, जेड पे इतना लगना है, तो ये ऑपरेशंस है, यहाँ पे टाइम जितना लगना है दैट विल बी इक्वल टू समथिंग, एंड देन यू आर गोइंग टू एस्टिमेट द टोटल प्रोडक्शन प्रोसेस टाइम फॉर द जॉब. तो टेक्निक यूजुअली यूज टू एस्टिमेट टाइम स्टैंडर्ड आर डायरेक्ट टाइम स्टडी, आप खड़े होके उसका टाइम देखिए कितना लगता है. यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेटा जो लिटरेचर में अवेलेबल है. प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सिस्टम जो लिटरेचर में मेथड अवेलेबल है कि भाई लिटरेचर में कहते हैं कि कई बार इक्वेशंस देते हैं कि एक्स मटेरियल रिमूवल रेट है, अगर वो कुछ है तो उसके लिए आपको इस तरीके से फॉर्मूला है दिया हुआ, उस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए टाइम. So predefined time standard system है, estimate based on previous experience, or maybe you are going to have some work sampling. आपने 10 में से 100 में से 10 की सैम्पलिंग करके एवरेज टाइम निकालने की कोशिश की. So they are each are having different benefits, and generalized benefits are here. Here you can see that the reduction in a time required for a time study analyzed to set a standard time. Greater accuracy and uniformity in the time standard should be taken care, ताकि ऐसा नहीं कि हम टाइम बचाने के चक्कर में हमने हमारी एक्यूरेसी को दांव पे लगा दिया. Ease of maintaining the method file and standard file when engineering and method changes occur. Elimination of the controversial performance rating step. The time standard can often be a set before the job get into the production. ये पहले से well defined होना चाहिए. Improve manufacturing database for a production planning and scheduling and forecasting the labor requirement and tool control as well. तो इस तरह के डेटा को आप टाइम स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एनालाइज करके आप प्रोडक्शन प्लान को, उसकी शेड्यूलिंग को कि कब कौन सा शॉप फ्लोर से कब निकलेगा, कब उसको डिस्पैच का हो जाएगा, ये सारी चीजें आप इससे फोरकास्ट कर सकते हो. सो दीज आर वेल डिफाइंड थिंग्स. कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान फर्दर जो स्टेप इन्वॉल्व है, जो बेसिकली इनपुट्स है, हमने सारी बात की, डिटेल में भी की, अब थोड़ी सी जनरल बात करते हैं कि इसके अंदर क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व है. प्रोसेस प्लान के बेसिक्स इनपुट्स है फैसिलिटी लेआउट, नॉलेज of the process planner, design packages, industrial engineers, tool gauge designers. Constraint is the facility layout is the constraint, and intelligence is also constraint. Time is also constraint. Okay. Mechanism engineers जो mechanism है वो industrial engineers है या tool और गेज डिजाइनर ये मैकेनिज्म यूज करेंगे, आप एनसी प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे, एंड प्रोसेस प्लानिंग इज द आल्सो अ मैकेनिज्म कि कौन से प्रोसेस प्लान में यूज हो रहे हैं. सो डिजाइन जो भी पैकेजेस है दिस आर इनपुट, आउटपुट वुड बी अ मशीन ऑपरेशन प्लान, दिस इज ओनली द आउटपुट. ओके. सो व्हाइल दिस वन ये एक इनपुट है यहाँ पे बेसिक, ये कंस्ट्रेंट है 4, and these 4 are mechanisms, and this is my final output. Okay, these all are listed here. So overall advantage in last, what we can say, systematically produce the accurate and consistent process plan. It lead to reduction in the cost and lead time of the process plan. Skill requirement of the process planner are reduced to develop feasible process plan. Then interfacing of the software, manufacturing lead time, estimation, work standard can easily be carried out, and leads to it all leads to a increase the productivity of the process planner
and further leads to uh, forecast a delivery date. Okay, so all these are the inherent part of the CAPP. In summary, what we have seen today, computer-aided process planning translation of the design information into various process step and instruction to get the efficient and effective manufacturing. It's a based on the product process plan can be retrieved from the earlier जो पुराना था उससे या fresh नया generate कर लो या कुछ पुराने से उठा लो और कुछ नया generate कर लो, that is hybrid. And also we have seen the computer generated time standard and various activity techniques and their advantages. So thank you for attending this session. If you like, then share, click on bell icon. Now I am going to stop the recording.